Are you starting your NEET 2026 preparation from zero level? No coaching, no prior base, and completely confused about how to start? So don't worry, this video is going to be a complete guide for you to begin your NEET journey in a best positive way possible. So without further delay, let's jump into the video. But before that, let me tell you one thing, that the last point of this video is going to be amazing and it is some of my own experience that I'm going to share in this video. So उसको मिस मत करना. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स ओके टू बी एट ज़ीरो लेवल. यार कहीं ना कहीं से तो सभी स्टार्ट करते ही हैं, तो हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं. सो इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं. तो पहली चीज़ तो यही है कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो लेवल, तो तुम्हारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं टू लर्न थिंग्स. एंड सेकेंड थिंग is that you will not get bored in this entirely time span of 11 to 12 months. At least you have a little higher amount of syllabus to cover. You will not get bored and you will be completely engaged in this preparation journey throughout the year. And one thing here I want to clarify is that NEET is not genius based IQ level exam. It is a very simple exam which needs your hard work along with the smart work and how consistent you are throughout the preparation journey. These are the three things that a NEET examination demands from you. If you are able to pay the cost of these three things, you are good to go with your preparation. And before you start preparing, you have to know about the exam. जैसे कि particularly first thing is subjects. तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे मेजरली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी सब्जेक्ट, इसके फर्दर सब डिविजन्स होते हैं. वन इज जूलॉजी एंड अदर वन इज बॉटनी. सो मोटा मोटा हम बोले तो 4 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास. एंड नेक्स्ट थिंग इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ये बताने से पहले मैं ये एक डिस्क्लेमर बता देती हूँ कि दिस वीडियो आई एम मेकिंग इन 2025. तो अभी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं, जो अभी के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग 180 क्वेश्चंस हैं और हमें 3 आवर्स के टाइम स्पैन में वो 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So which means 180 questions in 180 minutes. Next is marking scheme. For every correct answer, you are going to get +4. And for every incorrect answer, you are going to deduct it with the -1. So +4 for every correct answer and -1 for every incorrect answer. नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस. PCB का जो 11th और 12th का सिलेबस है वही नीट का सिलेबस है. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर इज दैट अबाउट द बोर्ड्स. जैसे कि CBSE बोर्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इट इज़ गुड टू गो. वहाँ पर NCERT बुक्स पढ़ाई जाती हैं. NCERT बुक से ही बोर्ड्स में भी पेपर आता है और नीट का पेपर भी NCERT बुक से आता है. CBSE में वट एवर यू आर स्टडिंग इन योर स्कूल, यू आर गुड टू गो विद दैट. But if you are in ISC board, then in ISC board I'm clear that no NCERT books are followed. Other standard books are there from where paper comes. तो क्योंकि उनका पेपर भी exactly NCERT book से नहीं आता, तो उसके लिए if you are ISC student, तो you should buy NCERT books apart from your school syllabus books. For the boards out there, follow your teachers in the school, but for the NEET, follow NCERT books. Buy the NCERT books of these 3 subjects and study from them for the NEET exam. And if you're studying into any other state boards, जिसका मुझे particularly idea नहीं है, अगर CBSE books follow हो रही हैं वहाँ पर, then that is well and good. But अगर CBSE books follow नहीं हो रही, then go and buy those NCERT books of these 3 subjects and for NEET, study from them. So the conclusion of second point is, your main weapon in this NEET preparation journey is going to be your NCERT books, especially in biology and chemistry portion. So अब हमने ये चीज़ क्लैरिफाई कर ली कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कितना सिलेबस आगे कवर करना है. एंड नेक्स्ट थिंग हमने क्लैरिफाई कर ली अबाउट द एक्चुअल एग्जामिनेशन, कि एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या इंटायरली इसका प्रोसेस होता है टू गिव दिस एग्जाम. वंस वी आर क्लियर विद दीज थिंग्स, नाउ वी आर गुड टू गो विद मेकिंग द स्टडी प्लान आउट देयर. सो लेट्स मेक a study plan that actually works. So step number 1 is break the syllabus into months, which means channelize your syllabus into the particular months, so that कि तुम्हें डिसाइड करना है कि इतने मेरे पास मंथ्स हैं और इतना मेरा सिलेबस है, मैंने कैसे इनको मंथ वाइज डिवाइड कर लेना है ताकि हर मंथ में पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करते हुए चलो. स्टेप नंबर 2 इज स्टार्ट विद योर 11th फर्स्ट, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम. हमेशा स्टार्ट कर रहे हो अगर
तो 11th से ही स्टार्ट करना, क्योंकि 11th के टॉपिक्स पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो जो टॉपिक्स हैं जस्ट लाइक वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम 11th में इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उनको एक्चुअल में 12th में यूज़ कर सकें कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो 12th में वैसे भी इसको सीखने का टाइम भी नहीं होता, सो 11th को पहले पढ़ो और उसके कॉन्सेप्ट सीखो, वो आगे अप्लाई भी होंगे। दूसरी चीज़, 11th ग्रेड टॉपिक्स टेक्स मोर टाइम, सो you need to study that first. And third step is pick one chapter per subject per week, which means कि हमने सबसे पहले मंथली प्लान बना लिया कि एक मंथ में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है। अब हमें उस प्लान को और ब्रेक डाउन करना है वीकली प्लान्स में, विच मीन्स एक वीक का हमें डिसाइड करना है कि हमने 4 सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं उनमें से एक सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर पिक कर लो, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एंड सेम वे बॉटनी और zoology में से भी एक एक पिक कर लो, एंड बाय द एंड ऑफ अ वीक तुम्हें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट कैसे करने हैं, आइदर रीड योरसेल्फ या फिर इसका लेक्चर देख लो। दूसरी चीज़, यू नीड टू रीड एनसीईआरटी ऑफ दैट चैप्टर, एंड तीसरी चीज़, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी देन यू आर गुड टू गो विद योर चैप्टर कि ओके अब मेरा ये चैप्टर डन हो चुका है। एंड फोर्थ स्टेप इज मेक डेली स्लॉट्स। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि मैंने कौन से स्लॉट में किस सब्जेक्ट को रखना है। मेनली इट हैपन्स इज दैट बायो जो होती है उसमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें होती हैं, मेमोराइजेशन वाली चीज़ें होती हैं। तो फॉर दैट इट्स बेटर टू कीप बायो इन द मॉर्निंग वाले स्लॉट में बायो को रख लो, चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, फ्रेश होता है दिमाग, एंड यू कैन ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अकॉर्डिंग टू यू। मेरे लिए तो पर्सनली मैं फिजिक्स को आफ्टरनून में करती थी, केमिस्ट्री को इवनिंग में करती थी, बिकॉज केमिस्ट्री वॉज अ बिट डिफिकल्ट, तो मुझे दोपहर में थोड़ी सी नींद आने लग जाती थी, सो आई केप्ट केमिस्ट्री इन द इवनिंग, और फिजिक्स मैंने आफ्टरनून में रखी थी। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो एंड डिसाइड द पर्टिकुलर स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इनटू द वीडियो, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन टू यू स्टार्टिंग फ्रॉम अ zero level? So pause this video, do write it in the comment section. Okay, now let me answer. Zero level exactly means that you are building फ्रॉम द बेसिक्स। हम बेसिक्स को क्लियर करते हुए फिर एक प्रो लेवल पर जाएंगे प्रिपरेशन के, इसको जीरो लेवल कहते हैं। नाउ इन दिस पॉइंट विल टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, द स्टडी प्लान। पहली चीज, मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में रिसोर्सेज के रिगार्डिंग बताया हुआ है, दिस इज द वीडियो, यू कैन गो एंड चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक अटैच कर दूंगी। और इसमें मैंने पेड एंड अनपेड दोनों रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, मैंने इसको बताया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक दैट। If you have your own resources that you are using, if that is NCERT based resources, you are good to go with them, but NCERT based ही रखना अपनी preparation, then only आपको कम efforts में अच्छे score कर सकते हैं। And second thing is, if you want lectures, और मैंने कुछ free of cost YouTube channels के बारे में बताया जो हमें free of cost complete lectures provide करते हैं, मैंने इस वीडियो में उसको explain करा हुआ है, you can go and check from this video, you can go to my channel एंड देयर इज़ अ प्लेलिस्ट अबाउट माई नीट जर्नी, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट की एक वीडियो है, तो उसमें से आप जाकर चेक कर सकते हो। बट स्टिल मैं सम अप कर देती हूँ यहाँ पर, बायो और केमिस्ट्री में वी नीड टू स्टडी एनसीईआरटी और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। फॉर फिजिक्स पहले सबसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है इन फिजिक्स, एंड देन आफ्टर वंस यू आर डन विद योर कॉन्सेप्ट्स देन यू हैव टू प्रैक्टिस the concepts. This is more important in physics. And also let me add one thing, once you finish a chapter, test yourself. लास्ट का वेट नहीं करना कि लास्ट में हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट देने से पहले ही कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टेस्ट देते रहो, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड, और तुम्हारा जो डर है ना एक वो टेस्ट वाला वो भी निकल जाएगा। जस्ट लाइक हमने पहले डिस्कस करा है प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो में कि जो हमने वीकली प्लान बनाया है कि पर सब्जेक्ट एक चैप्टर हमें करना है, मंडे से सैटरडे तक वो प्रिपरेशन करो, संडे को उन चारों चैप्टर्स का टेस्ट दे दो। दिस इज वन ऑफ द थिंग, इन दिस वे यू कैन रिमूव द फियर ऑफ गिविंग टेस्ट और यू विल बी कंफर्टेबल विद द टेस्ट आउट देयर, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें टेस्ट के थ्रू ही परफॉर्म करना है ना एग्जाम में। एंड नेक्स्ट थिंग इज, फ्रॉम डे वन इटसेल्फ आई वुड से कि लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाना साथ साथ शुरू कर दो जैसे जैसे लेक्चर्स देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स थोड़ा टाइम लेकर बना सकते हो, क्योंकि एक चैप्टर के क्वालिटी एंड क्रिस्प शॉर्ट नोट्स तभी बना सकते हो अगर तुमने एक पर्टिकुलर चैप्टर के लॉन्ग फॉर्म नोट्स को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि उसके लिए यू नीड to have a very good knowledge of a chapter. तो I would say कि once you are done with the chapter completely, then go for the short notes. But अभी के लिए long form notes बनाना बहुत ज़रूरी है when you are starting your.
ओके, सो नाउ वी हैव रीच्ड टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो, और ये लास्ट पॉइंट है। वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये कुछ पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा। सो मैनी टाइम्स यू विल फील बोर्ड, यू विल फील लाइक गिविंग अप, बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ये चीज़ें होती हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस जर्नी में, हर बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा इस पूरी जर्नी में। सो ये हमेशा याद रखना कि तुमने शुरू क्यों करा था, वॉट वॉज द स्टार्ट मोटिवेशन ऑफ योर्स। अगर उसको याद रखोगे तो अच्छे से तुम जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज़ इट्स ओके, प्रिपेयर, गिव योर 100% टू दिस एग्ज़ाम। बट किसी भी चीज़ को, इस एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चीज़ के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, उसको कभी अपने हार्ट और सोल से अटैच मत करना। डोंट कनेक्ट एनी थिंग विद योर हार्ट एंड सोल, बिकॉज हमें नेक्स्ट मिनट का नहीं पता वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, वेयर वी आर गोइंग टू बी। तो हम एक साल बाद वाली बात को पहले कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता हमारा वो जो नीट वाला दिन होगा, नीट एग्ज़ाम का दिन होगा, उसमें हमारा कितना लक हमारे साथ होगा, कितने अच्छा मेरा पेपर जाएगा और वो सारी चीज़ें, और किस सर्कमस्टेंसेस में उसका रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी चीज़, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। सो हम इतना एक्सपेक्टेशंस हाई ना कर लें कि बाद में हमें चीज़ें हर्ट करें। इतना किसी चीज़ को हार्ट एंड सोल से कनेक्ट मत करना कि बाद में चीज़ें हर्ट करें। हाँ, ये चीज़ दिमाग में रखना एट द सेम टाइम कि अगर मैं अपना एक साल दे रही हूँ ना किसी एग्ज़ाम को, तो मुझे उसमें अपना 100% देना है। उसके बाद एक साल बाद जो होगा हम उसको देख लेंगे और उसको जैसे भी सॉल्व करना होगा कर लेंगे, सॉर्ट आउट। बट अभी मुझे अपना 100% देना है। बट एट द सेम टाइम अपने आप को इतना परेशान नहीं कर लेना बिकॉज ऑफ अ सर्टेन एग्ज़ाम। क्योंकि देखो, तुम्हें ऐसा नहीं है कि पहले दिन से 15 घंटे से पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। इवन इफ़ यू आर डूइंग 4 to 5 आवर्स या 3 घंटे भी से स्टार्टिंग करते हो तो वेल एंड गुड है। ये चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हारे हर दिन नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी जो है उसमें इजाफा होना चाहिए, मतलब हर दिन बढ़ने चाहिए। अब अगर घंटों में बढ़ा नहीं पा रहे हो, इट्स ओके, मिनट्स कर लो। अगर पिछले दिन 4 घंटे पढ़ाई करी है तो अगले दिन 4 घंटे 15 मिनट कर लो, तो 15 मिनट तो तुमने इंक्रीज करे ना। तो ये हमेशा इंक्रीजिंग में चलना चाहिए, तुम्हारे स्टडी आवर्स कभी डिक्रीज मत होने देना। तो इट्स बेटर कि स्टार्ट हम कम से करें, बट स्टार्ट अच्छा करें और एक इफेक्टिवली करें, जिससे कि हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। ना कि कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्टिंग में कर दे कि जो बाद में फॉलो ही नहीं हो रहा। पहले दिन 17 घंटे पढ़ने लग जाओगे, बाद में सोचोगे कि अब तो 17 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। सो इसको हमेशा याद रखना। To all the NEET aspirants, NEET 2026 is yours. So do conquer it with a purpose, not with a pressure. Bye bye.